Hello guys, welcome to Ad Creative Strategy for Facebook Marketing. I'm making this video especially for LBB community. कुछ दिनों पहले WhatsApp group में I shared some sample ad creatives and there were a lot of interest from fellow entrepreneurs regarding my ad creative template. So I thought कि why not I prepare a presentation and share it with the community. I hope this presentation will provide a immense value, and by the end of it you'll have a fair understanding how you could approach Facebook ad creative strategy for your products and brand. Just note, you don't need any big budget or studio production for your ads to get working. Before I begin this presentation, let me introduce myself. I am Vikash Kumar Prajapati. I run a small e-commerce store, myresolve.in. Let me show you that. So this is the store that I run. We sell hand engraved bracelets with custom word. So I have been doing this for like past 14 months. We started during the first lockdown in the year 2020, and since then it has been a roller coaster ride. Facebook ads has been a key driver for sales. If you talk about ad spend, we have spent somewhere around rupees 15 to 20 lakh throughout the year, and in terms of ad creatives, I have tested more than 70 ad creatives. I have tested all kind of ad, video ads, image ad, carousel, everything. Whatever wisdom I'm about to share comes from my personal experience and the grinding that I have done in the past. Apart from myresolve.in, I make a living on the internet. I have other multiple businesses, projects, not in the e-commerce, but in the digital space. So I have a fair bit of understanding how the industry works. So that's about me. Without much ado, let's start the presentation. So today what we'll be talking about, first we'll discuss different components of selling via Facebook and Instagram ad. Then we'll see what are the different building element, your building blocks of a high converting ad. Then I also walk you through my research and planning process that I use for my ads. Then we'll talk about ad formats, ad creative funnel, and finally I'll break down whatever ad I used in this Rakhi campaign. I'll break down and explain what was the thought behind it, and then I'll share some ad template so that you could copy and use it in your brand or products. Throughout this presentation I'll be sharing a lot of video examples and ads from different brands that will give you some insights and the reason or thinking behind why that ad was created and how well they can perform. So let us start. When we talk about e-commerce transaction via Facebook ads, there are three components of it. The first one is the ad creative, the website and the offer. अब यहाँ पे एक बेसिक गलती हम सब करते हैं कि वी ट्राई टू सेल आर प्रोडक्ट थ्रू द एड्स. ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ एक हमारे ब्रेन को कंडीशन किया गया है विद द एड्स दैट वी हैव सीन इन द टेलीविजन्स, इन द होर्डिंग्स, इन द न्यूज़पेपर. बट जब डिजिटल मीडिया की बात होती है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एड हमारा ट्रेडिशनल मीडिया में है और जो डिजिटल मीडिया में है, द पर्पस ऑफ द एड इज़ डिफरेंट. जब आप फेसबुक एड या इंस्टाग्राम में अपना एड्स बनाते हो, एक ही पर्पस होना चाहिए, दैट इज़ टू इंट्रीग दी व्यूअर. जो एड देख रहा है उसने इंट्रीग करे और उनको कंपेल करे कि ही क्लिक्स द वेबसाइट, ही क्लिक्स एंड गो थ्रू द वेबसाइट. सो द सोल पर्पस ऑफ योर एड शुड बी क्लिक थ्रू रेट, क्लिक करके उसे वेबसाइट तक भेजना है. अब जो सेलिंग की पार्ट होती है दैट हैज़ टू बी डन बाय योर वेबसाइट. जो भी हैवी लिफ्टिंग है, तो आपका जो वेबसाइट होना चाहिए इट शुड बी हाई कन्वर्टिंग. जितने भी सेल्स ट्रिगर हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं ऑनलाइन सेल के, वो आपके वेबसाइट में होने चाहिए वो एलिमेंट्स. यहाँ पे आई नॉट टॉक अबाउट इन डेप्थ अबाउट दैट एलिमेंट्स. मे बी आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पे स्कोप से बाहर है वो. तो यू नीड दी एड क्रिएटिव्स. जो आपका जो कस्टमर है एड क्रिएटिव से एंगेज करके हिल क्लिक थ्रू दैट, गो टू योर वेबसाइट, एंड देन वेबसाइट में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए सेल कन्वर्ट करने के लिए. The third component that comes into play and is very crucial is that offer that you are presenting your audience. What I mean by offer is the perceived value that you are promising to deliver via product. It must be irresistible and at the same time priced according to the perceived value. To give you an example, when we were testing this product in the market, so
couple of sales, initial sales. We sold these bracelets for rupees 1300, rupees 1000. तो जब हमने full fledged launch किया तो we were very adamant कि we have tested the market, we have tested the waters. This bracelet can be sold at rupees 1300 or 1000. So we decided कि अगर full fledged launch करते हैं तो we'll have the pricing somewhere around 600 to 750. So that was the pricing that we decided. And जब हमने launch किया campaign, so we were not getting sales. Soon we realized our arrogance and lowered the price. And then boom, from 5 sales a day, we went to 40 sales a day with the same ad spent. So a change in the offer can be very crucial. So if you see, I mean, similar pattern कि आपके sales नहीं आ रहे हैं but you have traffic, maybe you could try different offers. So these are the three basic components you need to have: the ad creatives, the website, and the offer. और ये तीनों elements है ना, it has to complement each other. आपका ad creative should complement the website and the offer. अगर तीनों element में एक element भी आपका बुरा हो, so you'll get a hard time getting a sale. Moving on, let us take a look at the building blocks of a converting ad. I'll share some ad examples. तो आपको ये theory जो बता रहा हूँ will make more sense to you. So what an ad should have, social media की जब बात करें Facebook and Instagram में, it should have an hook or attention. मतलब आप जब scroll कर रहे हो, it should stop the scroll. It should be intriguing. अगर emotion evoke करता है तो बहुत ही बढ़िया. Is possible the ad if entertain, very good. Then एक classic problem solution होना चाहिए ad में. Benefits value proposition, objection handling, authority या social validation, and finally एक clear call to action होना चाहिए. एक चीज यहाँ पे नोट करना, ऐसा जरूरी नहीं है कि योर एड शुड हैव ऑल दिस एलिमेंट, बट इन सब पॉइंट्स में जितना ज्यादा एलिमेंट्स आपके एड में होगा उतना बेटर है. Let us do a simple exercise together. I have couple of ad examples. We'll take a look at them and see how many elements from this list applies to this ad. So let me play this ad first. The ad I grabbed it from Sleepy Owl Coffee. So let me play this. Mm-hmm. So an impressive 34-second ad, I must say. Now let us discuss. Now let us dissect to see what are the elements from our theory that fits into this ad. The first thing is hook and attention grabber. With the knocking on the camera, she got her attention. Was it intriguing? I think क्योंकि उन्होंने पूरा ad mute में चलाया, so that was intriguing. If you talk about evoke emotion, I think कोई emotion evoke नहीं हुआ यहाँ पे. Was it entertaining? I think it was entertaining. Did they talk about any problem solution? I don't think. Problem solution यहाँ पे उन्होंने address नहीं किया है. Benefits and value proposition. Yes, I think she mentioned the benefits and the value proposition in the ad. Objection handling, maybe अभी आपको objection handling नहीं समझ में आ रहा होगा. We'll talk about this in the later slides. So I don't think objection handling था यहाँ पे. Authority and social validation भी नहीं था. Finally एक clear call to action था कि get the code and buy from our website. So some points were not there in the ad, but maximum points थे इस element, maximum elements आपके इस ad में थे. Now let us take a look at the another ad. Okay, so I'll play this ad, और इस बार I'll not give any comments. You decide what are the elements that fit into this ad. So let me play this. काफ़ी स्वीट म्यूजिक था. सो हुक एंड अटेंशन ग्रैबर था बिकॉज इस लेडी की जो
स्माइल थी, जो हंसी थी, इट वॉज ग्रैबिंग माई अटेंशन. इंट्रीगिंग, पता नहीं. हाँ, इट डिड इवोक द इमोशन. इफ़ यू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस, मतलब इन सब चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, सो दैट इज़ द इवोक इमोशन. अगर आप अपने एड के थ्रू, इफ़ यू कैन इवोक इमोशन फ्रॉम ऑन द कस्टमर, दैट इज़ द बेस्ट ट्रिगर दैट यू कैन गिव टू मेक अ कन्वर्जन. तो यहाँ पे एक इमोशन इवोक किया है इन्होंने, बिकॉज ऑफ द सरप्राइज और द हैप्पीनेस दैट दे आर शोइंग. डिड इट एंटरटेन? मे बी नॉट. प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं दिखाया गया है. बेनिफिट्स एंड वैल्यू प्रोपोजिशन कुछ हद तक इन्होंने बताया है. नो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसमें नहीं किया गया है. अथॉरिटी एंड सोशल वैलिडेशन, देयर वाज अथॉरिटी, मतलब एंड में उन्होंने रिव्यूज़ दिखाए हैं लॉट्स ऑफ, सो दैट इज़ द सोशल वैलिडेशन. एंड फाइनली एक क्लियर कॉल टू एक्शन था. And if you ask me, I mean, I have been following this brand for a while, and I know this ad is working because ये इनकी तीसरी या चौथी iteration है with the same template. I mean, they are using new people with the laugh, but same happiness, same surprise, and they have already, मैंने 3-4 ad same category के देख चुके हैं इनके पिछले 2 सालों में. So this ad is working for them, इसलिए वो बार बार new people के साथ they are repeating this ad. So these are the 2 ad examples. Throughout this presentation I'll be sharing more ad examples जो आपको काफ़ी अच्छा insights देगा. So let us move forward to our next slide. So now it's time to put into practice. जो हमने अभी थ्योरी देखा, इसे प्रैक्टिस पे कैसे लेके आए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो है रिसर्च एंड प्लानिंग का. इफ़ यू डू दिस प्रोसेस राइट, आपका 50% काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है. So the process that I do for my ads, I'll break down that. तो सबसे पहला जो प्रोसेस का स्टेप है, that is angle of selling. सेकंड पॉइंट है अपने टारगेट ऑडियंस को सेगमेंट करना. एंड तीसरा जो पॉइंट है खास करके इंडियन ई कॉमर्स में, वो है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना. तो आई वॉक थ्रू ऑल दिस 3 स्टेप्स. तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम लोग एंगल फॉर सेलिंग की, तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, इट कैन बी सोल्ड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. अगर मैं अपनी ब्रेसलेट्स की बात करूँ myresult.in का, तो हम लोगों ने कुछ एंगल्स आइडेंटिफाई किए हैं. वो है पॉजिटिव अफर्मेशन, पर्सनलाइजेशन, गिफ्ट. इस बार हमने आइडेंटिफाई किया कि राखी ब्रेसलेट के तौर पे भी बेचा जा सकता है. एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस कपल गिफ्ट. तो ये 4 हमने एंगल आइडेंटिफाई किया है जिससे हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं. these are the profitable, और कह सकते हो इसमें सेल आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो टेस्टेड अदर एंगल्स दैट डिड नॉट वर्क फॉर अस. तो ऐसा नहीं कि आप जितना एंगल आइडेंटिफाई करोगे सभी एंगल्स में आपको प्रॉफिट मिलेगा. जो एंगल हमारे लिए काम नहीं किया है उसमें से एक है फ्रेंडशिप बैंड, देन गिफ्ट फॉर मोटिवेटिंग योर लव्ड वंस. इस तरह का एंगल हमने ट्राई किया दैट डिड नॉट वर्क. दीज आर दी 4 दैट आर वर्किंग फॉर अस. तो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में यू नीड टू आइडेंटिफाई दी एंगल कि आप किस एंगल से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. अब एंगल आइडेंटिफाई करने का ना प्रोसेस है. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? अगर आप मार्केट में ऑलरेडी हो तो अपना पर्सनल बायस थोड़ा सा हटा के आप एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपके जो कस्टमर्स हैं, वाई आर दे बाइंग फ्रॉम यू. उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है. वो गिफ्ट करने के लिए परचेस कर रहे हैं, खुद के लिए परचेस कर रहे हैं, या मे बी आपके किस मैसेज से वो रेजोनेट कर रहे हैं. यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट. अगर आप मार्केट में ऑलरेडी सेल कर रहे हो तो यू कैन नो, आप अच्छे से एनालाइज करोगे अपने डेटा को तो यू कैन गेट दैट पॉइंट. दूसरा जो प्रोसेस है, व्हाट यू कैन डू इज गो टू दी, मतलब आप जिस कैटेगरी में हो या जिस इंडस्ट्री में हो उनके टॉप ब्रांड के पास जाओ, उनके एड लाइब्रेरी में देखो व्हाट आर दी एंगल्स दैट दे आर यूजिंग. तो if they are using some angles that is working for them, so you can try and copy that angles as well for your product and services. And third जो सबसे crucial element है research का, go to Etsy and Amazon, same products के I mean competitors को देखो जो top sellers हैं, and go and read their positive reviews. अब जितने positive reviews पढ़ोगे then you'll come to see a pattern in all those reviews. और वो patterns if you collect and फाइंड आउट दिस पैटर्न, आपको वहाँ पे बहुत सारे एंगल्स मिल जाएंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. तो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज, रीड ऑल दी पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम अमेजॉन एंड एटसी,
एटसी अमेजोन एंड एटसी में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अमेजोन एटसी में जो भी रिव्यूज़ है दे आर वेरी जेन्युइन, वहाँ पे कुछ फेक नहीं है, कुछ फ्रॉड नहीं है, ऑल द रिव्यूज़ आर वेरी जेन्युइन। एटसी में खास करके जो रिव्यूज़ आते हैं दे आर एम्पैथेटिक, के काफ़ी एम्पैथी के साथ वहाँ पे रिव्यूज़ लिखा जाता है। सो दोज वर्क वंडर फॉर योर एडवर्टीजमेंट और योर एंगल, या आप जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को पोजीशन करना चाहते हो। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है अपने ऑडियंस को अपने ऑडियंस को सेगमेंट करना। सो यू ऑलरेडी नो कि आप किस टारगेट ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो। तो फेसबुक एड्स में सबसे जो बेनिफिट है वो है कि आप डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर सकते हो। यू कैन शो डिफरेंट ऐड टू डिफरेंट डेमोग्राफिक्स ऑफ द पीपल। आप चाहते हो वुमेन को कुछ और ऐड दिखाया जाए, मेन को कुछ और ऐड दिखाया जाए, यू कैन डू दैट विद फेसबुक ऐड। तो यहाँ पे ना कि आप एक ऐड बनाओगे हर एक ऑडियंस के लिए, वो काम नहीं करेगा। यू नीड टू क्रिएट एड्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है, अगर आप यंगर ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो, सो द एड क्रिएटिव और द थॉट बिहाइंड क्रिएटिंग दैट एड शुड बी डिफरेंट व्हेन यू नो एड्रेसिंग अ यंग मैच्योर ऑडियंस और अ ग्रोन अप ऑडियंस। जैसे मैंने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है, जो राखी कैंपेन में हमने ऐड यूज़ किया था। तो फर्स्ट आई मेड दिस ऐड, एक बार ऐड देखते हैं। लेट मी प्ले दिस ऐड। काफ़ी सिंपल ऐड है। तो वी वर सेलिंग राखीज, तो हमने सिर्फ 2 टारगेट ऑडियंस रखे थे, एक वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 30 एंड दूसरा 30 to 50 के एज ग्रुप में था। सो इस एड में व्हाट वी ऑब्जर्व कि वुमेन इन द एज 30 to 50 में इट वाज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। आई मीन वी आर गेटिंग अ क्लिक थ्रू रेट ऑफ समवेयर अराउंड 4 to 5%, जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी हाई है। बट द सेम एड वॉज नॉट परफॉर्मिंग in the 18 to 30 category because like I said, one ad for all does not work here. तो हमने क्या किया, एक simple tweak किया। Let me play this ad and then you can decide. Filled with flaws and attitude, so if you need perfect, I'm not built for you. Same ad creative, सिर्फ हमने म्यूजिक को चेंज कर दिया एंड वी पुट सम एक्साइटिंग म्यूजिक। एंड इन दिस एज ग्रुप 18 to 30 हमारा जो क्लिक थ्रू रेट था विद द प्रीवियस वीडियो इट वाज समवेयर अराउंड 1.5%, एंड आफ्टर चेंजिंग द म्यूजिक आर क्लिक थ्रू रेट जम्प फ्रॉम 1.5% to 2.5 to 3%। सो लाइक यू नीड टू सेगमेंट योर ऑडियंस एंड आपको देखना है कि how you are going to communicate with each segment of the audience, and उसके according आपको ads बनानी है अपनी। The third point that I mentioned, objection handling, ये मैंने पिछले स्लाइड्स में काफ़ी मेंशन किया है। when you sell online, एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो है ट्रस्ट का। how the customer is supposed to trust you, because यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, अब मीडियम इज़ इंटरनेट, और यहाँ पे एटलीस्ट जो पुराने जनरेशन के लोग हैं दे आर वेरी स्केप्टिकल टू स्पेंड देयर मनी, कि इंटरनेट से जो भी खरीदेंगे वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एड्रेस द ऑब्जेक्शन इन योर एड्स, इन योर वेबसाइट। जब भी मौका मिले ट्राई टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। आई विल शो यू अ क्लासिक एड जो इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, एंड दिस इज द मेन पॉइंट, इन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडल किया है एंड दे डिड अ वेरी गुड एड क्रिएटिंग दिस। So let me show you the ad. Who wants longer eyelashes? Me. I've been seeing this all over my Facebook. It's supposed to make your eyelashes longer and also fuller. As always, I am skeptical. So what am I gonna do? I'm gonna test this out on one eyeball. It's been a week. I don't really see a difference, but that's because it's been a week. It's been 3 weeks and I am actually seeing a difference. It's this eye. I don't know if you can see it, but I'm seeing it. It's been 6 weeks. I'm supposed to do it for 8, but I am done. Why? Because it's working. Now let's be real for a second. I know it looks like I curled these lashes or maybe put some mascara. I swear to you, I did not. Here's an extremely uncomfortable close-up for you all. And here's me with mascara. Take note, I tried with this eye. It's unbelievable.
Wish me luck on my future journey to fix this, but I do recommend. So a classic example, she very well handled the objection that the audience had कि will it work or not. So इस तरह का ad भी आप बना सकते हो. So when I talk about angle for selling, अब आपके प्रोडक्ट्स में या आपके सर्विसेज में व्हाट आर दी ऑब्जेक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट. तो जैसे मैंने बताया था ना कि गो टू अमेजोन और एटसी टू रीड द पॉजिटिव रिव्यूज टू फाइंड आउट द एंगल फॉर सेलिंग. आप सेम एक्सरसाइज आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी कर सकते हो. गो टू अगेन अमेजोन एंड एटसी, read all the negative feedback from the customers. So from the negative feedback you'll get what are the objections या customers को क्या doubts हैं, and you can answer them through your ads. एक दूसरा एक्सरसाइज आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम रीडिंग नेगेटिव फीडबैक, वो है कि अपने कस्टमर सपोर्ट टीम मेंबर से बात करो एंड आस्क देम व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द कस्टमर्स. दैट कैन ऑल्सो अपने सारे अगर एफएक्यू एक जगह कलेक्ट कर लोगे तो दैट कुड ऑल्सो बी यू नो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको हेल्प करेगा. सो रीड दोज योर एफएक्यूज एंड देन एक और आप एक्सरसाइज कर सकते हो. आपके कॉम्पिटिशन्स हैं उनके फेसबुक फीड में जाओ, उनका एड्स देखिए एंड रीड दी कमेंट्स. वहाँ पे जो टॉप 3 कमेंट्स है ना, वो कमेंट्स में भी आपको पैटर्न्स दिख जाएगा कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्शंस और व्हाट आर दी डाउट्स द कस्टमर आर हैविंग. तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दोस एंड address those objections in the next act that you prepare or you create. Now I mean I'll run through this. I think everyone is aware Facebook ads में there are 3 types of basic ads: single image ad, video ad and carousel ad. Let me show. So ये single image ad है. I think everyone watching this video आपको इस तरह के ads सर्व की गई हैं Facebook और Instagram feed में. So you know what a single image ad is. ब्रांड का नाम है, एक सिंगल इमेज है एंड देन सम कैप्शंस व्हाट दे आर सेलिंग. सो दिस इज अ सिंगल इमेज ऐड. फिर वीडियो ऐड रेज कॉफी का, सम ही इज ट्राइंग टू से कन्वे सम मैसेज. तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऐड. एंड देन फाइनली वी हैव अ कैरोसेल ऐड जहाँ पे यू गेट डिफरेंट क्रिएटिव्स एंड देन स्वाइप, आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके यू कैन एक्सप्लोर मोर. So these are basic 3 different kinds of ad that Facebook provides us. Now before I delve any further, let me explain you the simple ad creative funnel. जो भी आगे आप जब ad बनाओगे तो काफ़ी काम आएगा ये. Facebook as an ad platform is a very powerful ad tool. Here you can laser target demographics, and in addition to that you can map out the entire customer journey and show specific ads to where your customers or the prospect lie in your marketing funnel. Before I discuss what ad work at what awareness level, let me explain the basic ad funnel. So you can break down your entire customer journey into 3-step funnel: tofu, mofu and bofu. Tofu stands for top of the funnel, mofu stands for middle of the funnel and bofu stands for bottom of the funnel. अब टॉप ऑफ द फनल में कस्टमर्स हैव नेवर हर्ड ऑफ यू, मतलब यहाँ पे वो कस्टमर लाइक करते हैं जिन्होंने आपका ब्रांड, आपका सर्विस के बारे में कभी नहीं सुना है. तो वी कॉल देम कोल्ड ऑडियंस, दे आर टोटली अनअवेयर. फिर बात करते हैं हम लोग मोफू की. तो मिडिल ऑफ द फनल में वैसे कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट लाई करते हैं जिन्होंने आपका जो एड है टोफू यानी टॉप ऑफ द लेवल में देखा है एक बार. दे हैव एंगेज विद द एड, दे हैव वॉच द वीडियो, या फिर उन्होंने आपके एड्स पे लाइक किया है, कमेंट किया है, मे बी शेयर भी किया है, बट अभी तक उन्होंने क्लिक करके वेबसाइट में विजिट नहीं किए हैं. वी कॉल देम मोफू, या फिर कह सकते हो आप एड एंगेजर्स, उन्होंने आपके एड के साथ एंगेजमेंट की है. फिर हम बात करते हैं बोफू. बॉटम ऑफ द फनल में वैसे कस्टमर्स हैं, या फिर कस्टमर्स में नहीं बोलूँगा, विल कॉल देम प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि अभी तक उन्होंने परचेज नहीं किया है. तो बॉटम ऑफ द फनल में वैसे प्रॉस्पेक्ट्स लाइक करते हैं जिन्होंने आपके एड्स को देखा है, इंटरेक्ट किया है एंड क्लिक करके आपके वेबसाइट पे लैंड किया है. अब जब वो वेबसाइट पे लैंड करते हैं तो दे हैव व्यूड द प्रोडक्ट और मे बी इवन एडेड टू कार्ट, बट फॉर सम रीजन और व्हाट दे हैव नॉट मेड अ परचेज, एंड दैट रीजन कैन बी एनीथिंग. मे बी आपकी प्राइस पॉइंट ज़्यादा है, या फिर दे हैव सम ऑब्जेक्शंस, और मे बी दे वर बिजी विद सम अदर वर्क एंड थॉट कि चलो बाद में खरीदते हैं. So these people lie in the bottom of the funnel. They have the highest intent to make a purchase. So we can break down all your prospect into 3-step funnel: tofu, mofu and bofu.
नाउ विल टॉक अबाउट कि किस स्टेप में या किस स्टेज में किस तरह के ऐड वर्क करते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ ऐड यू शुड बी क्रिएटिंग फॉर ईच स्टेप ऑफ द फनल हियर। तो जब हम लोग टॉप ऑफ द फनल की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स व्हेन यू क्रिएट ऐड फॉर टॉप ऑफ द फनल, यहाँ पे कस्टमर्स आपके बारे में नहीं सुना है, दे आर नॉट अवेयर, तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ एड्स वर्क। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको प्लेटफॉर्म के साथ ब्लेंड होना है। वॉट एवर प्लेटफॉर्म यू आर रनिंग दी एड, अगर आप इंस्टाग्राम में चला रहे हो तो जो भी कंटेंट या जो भी एड क्रिएटिव्स होगा इट शुड बी ब्लेंड इन। लगना नहीं चाहिए कि एड है, बिकॉज इतना ज़्यादा एड्स आर बीइंग सर्व टू पीपल, बिकॉज सोशल मीडिया में फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, पीपल आर सर्व विद टन्स एंड टन्स ऑफ एड्स। इतना एड्स हो गया ना कि पीपल आर बिकमिंग एड ब्लाइंड। तो यहाँ पे आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ट्रिक करना है कि वट एवर कंटेंट और वट एवर एड यू आर प्रेजेंटिंग टू देम, तो दैट इज नेटिव टू द प्लेटफॉर्म, किसी क्रिएटर ने बनाया है या मे बी देयर फ्रेंड इज शेयरिंग समथिंग ऑन द फेसबुक, सो यू नीड टू ट्रिक देम इन कि ठीक है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स और मे बी इन्फ्लुएंसर इज पोस्टिंग समथिंग, लेट मी एंगेज विद दैट कंटेंट। तो you need to blend in the platform, make 15 second video ad works best for the past 2 साल में video ads are performing very well। हमने previously discuss किया कि you need to identify different angles, so you can test different angles here। अब जितने भी angles होंगे, make one video for one angle and you can test it out here। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने टीवी पे देखा है, मेंटोस की ऐड देखा है, क्वर्की एंड देन ट्राइंग टू बी स्मार्ट विद द एड्स, दैट डज नॉट वर्क। यू हैव टू बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी आपके प्रोडक्ट है, मेक श्योर कि वट एवर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड वट एवर यू आर ऑफरिंग दैट इज डिलीवर टू द प्रोस्पेक्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स। उन्हें 4 सेकेंड 5 सेकेंड में आप क्या बेचते हो, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो कन्वे हो जाना चाहिए। डोंट ट्राई टू बी ट्रिकी और लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बनाना है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क्स बेस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 सेकेंड वीडियो एड्स, बिकॉज हमारा पेशेंस लेवल एज ए ह्यूमन भी थोड़ा कम हो गया है, अटेंशन स्पैन कुछ भी होता है वी डोंट एंगेज फॉर मोर देन अ मिनट, और आई मीन अगर कुछ अच्छा भी लगता है चलो स्क्रॉल करो, नेक्स्ट कंटेंट पे जाते हैं। सो वट एवर content or whatever value proposition you are about to present in your ads, make sure to cut it down as small as possible। 10 सेकेंड 15 सेकेंड में उसको आप डिलीवर करो। दूसरा है यूजीसी स्टाइल। यूजीसी स्टाइल मीन्स यूज़र जनरेटेड कंटेंट स्टाइल। ये वीडियोस काफ़ी चल रहे हैं पिछले जब से रील्स आया इंस्टाग्राम में ना, दीज एड्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। आई विल शो यू व्हाट यूजीसी एड मीन्स। वी हैव सम एग्जांपल्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट किए हैं जो आगे आने वाले स्लाइड्स में है, सो यू कम टू नो व्हाट यूजीसी स्टाइल लुक्स लाइक। देन अगर आपका प्रोडक्ट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, देन प्रॉब्लम सोल्यूशन यू कैन इंट्रोड्यूस इन द टॉप ऑफ द फनल। यहाँ पे आप प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करो, उसका सोल्यूशन बताओ। नाउ टॉकिंग ऑफ द मिडल ऑफ द फनल, यहाँ पे वैसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपके टॉप ऑफ द फनल ऐड के साथ एंगेज किया है, विच इज़ क्लियर कि दे हैव सम इंटरेस्ट आपके एड्स में, बट इंटरेस्ट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि दे क्लिक थ्रू एंड विजिटेड योर वेबसाइट। सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपको जो टॉप ऑफ द फनल से कस्टमर्स छट के आए हैं, यू नीड टू इंटेंसिफाई देयर इंटरेस्ट आपके ब्रांड में, आपके प्रोडक्ट्स में। सो व्हाट यू कैन यूज़ लॉन्ग फॉर्म वीडियो एड्स, जहाँ पे पिछले बार टॉप ऑफ द फनल में यू मेड 15 सेकेंड 20 सेकेंड एड्स, जहाँ पे यू कंडेंस्ड ऑल योर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड डिलीवर्ड कंडेंस करके डिलीवर किया। मे बी दैट कुड नॉट हैव एक्सप्लेन्ड इट बेटर। सो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो एड्स, मे बी अ मिनट और 90 सेकेंड्स समथिंग लाइक दैट। फिर अनबॉक्सिंग वीडियोस, हाउ द प्रोडक्ट लुक्स वाइल अनबॉक्सिंग, एंड देन लाइफस्टाइल एप्लीकेशन कि लाइफस्टाइल में हाउ कस्टमर्स आर यूजिंग योर प्रोडक्ट्स। देन यू कैन यूज़ सोशल प्रूफ मैशअप कि कितने लोगों ने सोशल प्रूफ वैलिडेशन की हाउ पीपल आर reacting to your products and how they are loving it, you can show that। value proposition mashup, objection handling, people top of the funnel में उन्होंने क्लिक नहीं किया, मे बी दे हैव सम क्वेश्चंस और सम ऑब्जेक्शंस आपके प्रोडक्ट को लेके, तो यू कैन आंसर दैट हियर। एंड देन फाइनली यू कैन ऑल्सो यूज़ वीडियो रिव्यूज़। तो इन तरह टाइप्स के एड्स यू कैन यूज़ इन द मिडल ऑफ द फनल। कमिंग स्लाइड्स में वी हैव सम एग्जांपल्स जो आपको और क्लियर कर देंगे कि सोशल प्रूफ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वीडियो रिव्यूज के ऐड किस तरीके से दिखते हैं। यू कैन टेक इंस्पिरेशन एंड क्रिएट योर ओन वर्जन ऑफ इट। नाउ
कमिंग टू द बॉटम ऑफ द फनल, आपने जब मिडिल ऑफ द फनल में इंटेंसिफाई कर दिया उनका इंटरेस्ट, नाउ बॉटम ऑफ द फनल में जो पीपल लाइक कर रहे हैं, दे हैव द हाई इंटेंट, उनको परचेस करना, प्रोडक्ट पसंद आया है, दे हैव विजिटेड योर वेबसाइट, इवन एडेड टू कार्ट, बट मे बी सम रीजन की वजह से दे हैव नॉट मेड अ परचेस। तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए यू नीड अ स्मॉल ट्रिगर। यहाँ पे आपको कस्टमर्स को एक स्मॉल ट्रिगर देना है, उस ट्रिगर की वजह से दे हैव टू मेक क्विक डिसीजन, और वहाँ पे उन्होंने परचेस करना है। जैसे यू कैन यूज अर्जेंसी एंड स्कार्सिटी की, आप यहाँ पे अर्जेंसी और स्कार्सिटी यूज कर सकते हैं कि लाइक ऑफर चल रहा है, नेक्स्ट 20 मिनट्स में ऑफर्स खत्म हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और मे बी स्टॉक्स आपके लो चल रहे हैं, यू हैव ओनली 5 ऑफ देम लेफ्ट, यू कैन यूज दिस टैक्टिक्स बिकॉज दे नीड अ ट्रिगर टू मेक अ परचेस। या यहाँ पे आप कैराजोल भी यूज़ कर सकते हो, और कैराजोल में यू कैन यूज रिव्यूज़ एंड मे बी शो डिफरेंट एड्स कि उनका जो इंटरेस्ट है, आप उसको दोबारा मौका दे रहे हो कि ट्रिगर करके दे मेक अ परचेज। यू कैन यूज रिव्यूज़, ऑफर एंड प्रोमोज भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो बॉटम ऑफ द फनल इज द सिंपलेस्ट एड, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ ट्रिगर दो, make a trigger and make that conversion happen. So these are the three, top of the funnel, middle of the funnel and bottom of the funnel. आप तीनों के लिए अलग तरह के एड्स बनाओगे। जब आप अपने कॉम्पिटिटर के एड स्टडी करोगे, आई मीन इफ यू गो टू द एड लाइब्रेरी ऑफ योर कॉम्पिटिटर, ट्राई टू सी मतलब व्हाट काइंड ऑफ एड्स दे आर प्रेजेंटिंग, उन्होंने टॉप ऑफ द फनल में किस तरह के एड दिखा रहे हैं, मिडिल ऑफ द फनल में कैसा दिखा रहे हैं, एंड बॉटम ऑफ द फनल में किस तरह के दिखा रहे हैं। सो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट योर एड्स। अब बात करते हैं एड कॉपी की। सो जो मेरा कैटेगरी है, माय प्रोडक्ट इज़ एन इम्पल्स बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई डोंट, मतलब यहाँ पे एड कॉपी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, और मे बी आई कुड से दैट आई हैव नॉट टेस्टेड इनफ एड कॉपीज टू सी अ डिफरेंस, तो आई कीप इट वेरी सिंपल। तो आई विल नॉट डेल्व इन फर्दर कि आप एड कॉपी जो आप यूज़ करोगे अपने एड्स में, सो व्हाट दैट नीड्स टू बी, आई शेयर दिस प्रेजेंटेशन, आप डाउनलोड करके यू कैन गो थ्रू देम कि what I use during my Rakhi campaign, and then you can copy it or you can use it. But again, I'm making sure, I mean, I want to give you a disclaimer, ad copies matter करते हैं मे बी इन सम नीचेस, जहाँ पे आपको कस्टमर्स को अवेयरनेस लेवल इंक्रीज करना है या हाई टिकट प्रोडक्ट है आपका, तो यू नीड सम बेटर एड कॉपीज टू मेक अ सेल देयर। बट फॉर माई प्रोडक्ट इट वॉज इम्पल्स बाई, तो आई केप्ट इट्स वेरी सिंपल कि वैल्यू प्रपोजिशन दिया मैंने, एक क्लियर टू कॉल एक्शन है, एक क्लियर कॉल टू एक्शन है। सो टोफू मैंने कीप इट सिंपल, वैल्यू प्रपोजिशन CTA है, मिडिल ऑफ द फनल में फिर कीप इट सिंपल, रिव्यू, वैल्यू प्रपोजिशन CTA, सेम मैंने स्ट्रक्चर फॉलो किया तीनों में। यू कैन ट्राई विद डिफरेंट वेरिएशंस, आई डोंट थिंक दिस विल मेक अ डिफरेंस फॉर अ इम्पल्स बाय प्रोडक्ट, मे बी फॉर हाई टिकट प्रोडक्ट और जहाँ पे कंसिडरेशन है या फिर कस्टमर्स को अपने प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है, देयर यू कैन यूज अ बेटर कॉपी। यहाँ पे वे सेम चीज, सोशल वैलिडेशन, वैल्यू प्रपोजिशन CTA, एंड देन ऑल्सो बोफू एंड मोफू में यू कैन गिव डिस्काउंट्स। ओके, सो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है कि फर्स्ट यू नीड टू डू योर रिसर्च, आइडेंटिफाई द एंगल्स, देन सेगमेंट योर ऑडियंस, उसके बाद व्हेन यू प्लान योर क्रिएटिव्स, प्लान फॉर टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल, अब किस तरह का एड्स आप बनाओगे वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे वो फाइनल एड क्रिएट करने में। तो सबसे पहले कि स्टडी एड्स फ्रॉम बिग ब्रांड्स इन योर कैटेगरी, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, दे हैव अ बिग मार्केटिंग टीम, तो आप उनका एड लाइब्रेरी देखो। फेसबुक ने ये 1 साल पहले या 2 साल पहले ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, आई थिंक फेसबुक एड लाइब्रेरी ओपन कर दिया, any people can go and see the ads that other brands are running. So it has democratized the जो ये ad platform है, even a small player can go in and make a great and make a conversion. ये Facebook ने बहुत अच्छा किया है। So the ad library is open, अब बड़े brands की ad library जाओ and study from that and see what is working for them. Big brands, they are making bucks, they are in business for some reason, and उनके ads जो हैं those are working, maybe they are testing out but some ads are working for them, तो try to figure out कि उनका elements क्या है and what angles they are using, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा important factor है ना, वो है प्री परचेस एक्सपीरियंस। व्हेन वी टॉक अबाउट अगेन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में ना, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, पीपल आर नॉट अवेयर, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इफ़ यू गो टू अ ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर, वी कैन सी दी प्रोडक्ट, वी कैन फील दी प्रोडक्ट। तो अपने एड्स के थ्रू ना आप कस्टमर्स को प्री परचेस एक्सपीरियंस दो
कि खरीदने से पहले कि प्रोडक्ट कैसा है, कितना एक्साइटमेंट है प्रोडक्ट को, ताकि उनका हाइप अगर एक बार बढ़ा दो तो मेकिंग अ सेल इज ईजी देयर। फिर रियल लाइफ प्रोडक्ट एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो कि रियल लाइफ में प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, कैसे दिखेगा, यू कैन यूज दैट। देन की शॉट्स यानी जो स्क्रोल स्टॉपिंग शॉट्स है, या फिर ऐसा कौन सा शॉट आप अपने एड्स में यूज़ करोगे ना दैट विल मेक इंट्रिग द कस्टमर्स, और स्क्रॉल स्टॉप कर दें, दैट विल स्टॉप द स्क्रॉल ऑफ द पीपल और दे विल गेट अटेंशन देयर। एंड देन जहाँ भी पॉसिबल हो यूज़ ह्यूमन फेसेस, इमोशनल फेसेस वर्क्स बेस्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ यूज़ ह्यूमन फेसेस बिकॉज बोथ प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे फेसेस दिखते हैं, तो दैट इज नेटिव, एंड वी हैव एज अ ह्यूमन वी हैव अ टेंडेंसी टू respond differently to a media ad and a ad with faces in them. So wherever possible, try to use human faces. So now what I will do, I will break down my ad creatives जो मैंने राखी कैंपेन में यूज़ किए हैं, एंड दिस वाज आई डिड अ प्रॉपर प्लानिंग। आई वॉज नॉट श्योर कि ये कैंपेन प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, बट इट वॉज प्रॉफिटेबल। सो आई ब्रेक डाउन मेरे ad create करते वक्त what were my thoughts and what are the things that I kept in mind while creating ad. Maybe this will give you some insights and some inspiration that you can follow along for your ads. So टोफू में मैंने की शॉट्स यहाँ पे एक ad देख लेते हैं पहले कि what ads I used, and then I'll explain कि what was my thought behind that. सो ये मैंने ऐड यूज़ किया था टॉप ऑफ द फनल में, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, 15 सेकेंड्स एड्स था। सो यहाँ पे जो की शॉट था, द की शॉट वॉज कि बहन अपने भाई को राखी पहना रही है, दैट वॉज द की शॉट दैट आई डिसाइडेड कि वो फील देना है। सो आई वो दिखाना था मुझे। एंड द सेकंड थिंग आई वांटेड कि जब बंदा फ़ोन ऐड देख रहा है फ़ोन पे, सो द वर्ड्स दैट आर एनग्रेव्ड इन द ब्रेसलेट इट शुड बी क्लियरली विजिबल, क्योंकि जो हमारा ब्रेसलेट बिकता है इट सेल्स बिकॉज ऑफ द वर्ड्स, नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रेसलेट इज ब्यूटीफुल और समथिंग लाइक दैट। जो वर्ड्स एनग्रेव्ड है दैट इज द आर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो वो वर्ड्स दिखने चाहिए। तो इफ यू कुड सी हमने जब वीडियो रिकॉर्ड किया, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा ना, सो द वर्ड्स इज नॉट क्लियरली विजिबल, तो आई हैड आई हैड टू यूज स्टिल इमेजेस। ये हमने स्टिल इमेजेस क्लिक किए हैं एंड देन आई मर्ज इनटू द वीडियो, ताकि ये जो वर्ड्स है वो दिखे। एंड द वर्ड्स दैट वर शोन इन द वीडियो वर प्लान्ड, कि ये वर्ड्स मेरे देर आर हॉटेस्ट सेलिंग, और ये इंट्रीग करेंगे। ये बॉन्ड फॉर लाइफ जो ये वर्ड है, इट वॉज द हॉटेस्ट सेलिंग आइटम फॉर आर राखी प्रोडक्ट, एंड यही हमारा इमोशन ट्रिगर था कि। और जो मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया था, तो बैकग्राउंड वॉज ऑल्सो गिविंग अ वाइब कि राखी का सबकॉन्शियस वाइब आ रहा था, द कलर्स दैट आई हैव यूज्ड, द थाली दैट आई हैव अरेंज्ड, इट वॉज नॉट दैट लाउड बट स्टिल अ सबकॉन्शियस किक में ये राखी का फीलिंग आ रहा था। सो दैट वॉज द थॉट बिहाइंड दिस एड। आई यूज दिस एड फॉर द टॉप ऑफ द फनल। व्हेन वी टॉक अबाउट माय मिडिल ऑफ द Here are फनल, 3 reasons. तो मिडिल ऑफ द फनल में मैंने 2-3 ऐड बनाए थे। एक सिंपल था, जैसे आई सेड कि मिडिल ऑफ द फनल में पीपल शोड इंटरेस्ट एंड दे नीड टू इंटेंसिफाई देयर इंटरेस्ट हियर, तो आई यूज दिस ऐड। यहाँ पे देखते हैं, फिर आई टॉक अबाउट व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट। Here are 3 reasons you should order your Rakhi bracelet from My Resolve. You can engrave a personalized message for your brother, which will be a very unique way to celebrate your bond with him. Available in multiple colors, you can choose the Rakhi according to your brother's liking. Rakhi bracelet for My Resolve are durable and of high quality. Unlike other traditional Rakhis, your brother will wear this Rakhi for months and not days. Use code MyResolve to get 10% off. So Here this was a simple ad. I mean, for a long form tha, I used a template called 3 reasons why. तो 3 reasons might give 3 value proposition कि why you should make a purchase, and जो मैंने यहाँ पे visuals चल रहे हैं, so visual का main intention था to give a pre-purchase experience कि हाथ पे पहनने के बाद वो कैसा लगेगा, किस तरीके के से दिखेगा, and एक close-up look भी था कि how the metal shines and how एक
बिफोर मेकिंग अ परचेस द कस्टमर और द जो प्रॉस्पेक्ट है उन्हें इस एड से पता चल जाएगा कि वो जो ब्रेसलेट मिलने वाला है हाउ दे इट लुक्स. सो दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट कि वैल्यू प्रोपोजिशन बताओ एंड गिव देम अ प्री परचेस एक्सपीरियंस इन दिस एड. I just received And then ये ad मैंने I used in the middle of the funnel as well as in the bottom of the funnel. तो हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था ना कस्टमर्स के दिमाग में, वी वर अ न्यू ब्रांड, पीपल वर अनअवेयर ऑफ दैट, एंड अनफॉर्चुनेटली बोलो तो इंडियन ई कॉमर्स में बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो 5,000 का सामान 500 में बेचेंगे एंड दे डोंट शिप. आई मीन पैसे ले लेते हैं एंड शिप नहीं करते हैं, और दैट इज़ द रीज़न जो COD का मार्केट इतना गंदा है, पीपल डोंट ट्रस्ट ऑनलाइन बिजनेसेस. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था कि विल वी शिप द प्रोडक्ट, क्योंकि नया ब्रांड थे, वी आर एडवर्टाइजिंग, तो पीपल वर अनअवेयर कि हम लोग शिप करेंगे कि नहीं करेंगे. सो दैट वाज द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन दैट वी हैड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी एक बड़ा डाउट था हमारे कैंपेन्स में कि वी आर नॉट डूइंग कैश ऑन डिलीवरी एड्स. हम लोग सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स दे रहे थे बिकॉज वी हैड सम रीजंस फॉर दैट. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट इन अ वेबसाइट. हमने अच्छा से राइटअप प्रेजेंट किया है वहाँ पे. सो दिस वर द टू डिफरेंट मेन ऑब्जेक्शन दैट द कस्टमर हैड. तो मैंने ये ऐड बनाया एंड just look at the ad, then I'll talk about what was the thinking behind it. I just received my Rakhi bracelet from my Resolve. The packaging is so cute. I had ordered Chase Your Dreams engraving for my brother. The engraving is so beautifully done. My brother is definitely gonna love this Rakhi bracelet. ये प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं था, बट स्टिल आई ट्राई टू हैंडल द ऑब्जेक्शन. जो पहला लाइन यूज़ किया इट वाज वेरी इंटेंशनल एंड टू द पॉइंट. इसमें मुझे दिखाना था कि एक बंदे के पास वी हैड टू शो कि हमारे कस्टमर के पास हमारा बॉक्स है, एंड द फर्स्ट लाइन शी मेंशंस आई जस्ट रिसीव्ड माय राखी ब्रेसलेट. मतलब वी वर सबकॉन्शियसली आई वाज ट्राइंग टू गिव अ किक इन द कस्टमर्स माइंड कि वी आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और इनको प्रोडक्ट मिल गया है. And then again I use the same tactics जो हमने पिछले ad में यूज़ किया. I wanted to give a close-up look and give a pre-purchase experience to the bracelet that we were selling. And then एक ad जो मतलब simple image ad that I used, past में हमारे लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. वो एक सिंपल सा ad है. I would melt if someone gave me this as a gift. ये ad जो था I got this idea and मतलब टेस्ट किया and it was a super duper hit. I mean we were getting 5% 7% इस पे हमें क्लिक थ्रू रेट मिल रहे थे. अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था मैंने, द सोल पर्पस ऑफ योर एड मस्ट बी टू गेट द क्लिक. तो ये जो एड था इट वाज वेरी इंट्रीगिंग, और इसे देख के देयर वर लॉट ऑफ पीपल चेकिंग आउट द वेबसाइट आने के बाद उनको प्रोडक्ट्स के इमेजेस अच्छे लग रहे थे, सो दे वर मेकिंग अ परचेस. तो दिस वर्कड. मतलब एक साल पहले हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया था. देन अगेन आफ्टर रील्स स्टार्टेड तो ये एड आई मीन थोड़ा सा ये फेड आउट हो गया. तो आई वांट कि अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हो ना, सो यू कैन ट्राई दिस वन आउट. गिव देम अ इंट्रिगिंग ट्विटर स्टाइल एड एंड सी हाउ पीपल रेस्पॉन्ड. एंड इफ यू वुड हैव एज एक्सपेक्टेड, आई मीन इस एड्स में काफ़ी ट्रोल्स थे. पीपल आर ट्रोलिंग लाइक क्रेजी. तो उससे फेसबुक एड का एंगेजमेंट भी बढ़ रहा था एंड people were converting with this ad. So you can try this ad and see if it works for you. What I'll do now, जैसे मैंने ad types के बारे में बताया थे, different ad types, what is UGC style and all those templates that I mentioned in the previous slides. I have collected few samples for them. We'll go through them and see what are the different templates that you can use for your ads. Okay. तो सबसे पहला है क्लासिक प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐड, कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर रहे हो एंड देन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द सोल्यूशन. लेट अस सी एन एग्जांपल एंड यू कैन take inspiration from this. Can you see this right here? I used to have very thin hair patch. I had this massive hair fall issue. My hair was thin, but I was looking for something promising and everlasting. That's when Vedix happened to me. Your mind will be blown when you go to Vedix.com. It is amazing. Anti-hair fall oil, the shampoo, and hair regrowth serum. They are all natural, all Ayurvedic. My hair feels so good and nourished and so much better than before at just rupees 999. I would definitely say Vedix is the answer to hair fall. It is the reason for good hair health. So ये classic प्रॉब्लम सॉल्यूशन है. इन्होंने एड अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने अपना फोरहेड दिखाया. देयर वाज नो नीड ऑफ दैट, बट नीडेड टू कैच द अटेंशन.
तो वी स्टार्टेड विद दैट. यू सी Can you see this? ये दिखा रहे हैं, दिख तो नहीं रहा है बट कह लो क्लासिक अटेंशन ग्रैबिंग है. दे हैव यूज्ड ह्यूमन फेसेस, दे आर इंट्रोड्यूसिंग द प्रॉब्लम एंड देन दे आर गिविंग द प्रोडक्ट एज अ सोल्यूशन. और यहाँ पे ये जो वेदिक्स ब्रांड है, दे हैव नॉट कोई हाई टिकट मॉडल्स या फिर प्रॉपर इन्फ्लुएंसर यूज नहीं किए हैं, बिकॉज दे नो they wanted to make it native and they wanted to resonate with the target audience that they were segmenting in this ad. और ये वेदिक्स जो ब्रांड है ना, इनकी जो पेरेंट कंपनी है, दे आर इंटरनेट मीडिया पब्लिशिंग कंपनी एंड काफ़ी बड़ी कंपनी है. एंड दे नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वर्क्स इन द इंटरनेट एंड हाउ पीपल बिहेव इन द इंटरनेट पे पीपल कैसे बिहेव करते हैं. दे नो दैट ट्रेड. अगर आपको कहीं से लर्निंग लेनी है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि गो टू वेदिक्स फेसबुक एड लाइब्रेरी एंड आई लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, दे हैव 1800 एड्स रनिंग एट द मोमेंट. सो अ वेरी बिग ब्रांड एंड समथिंग इज वर्किंग फॉर देम. You need to go and learn the see the template that they are using. Now अगला जो ad type we'll talk about is video review mashup. देखते हैं कि how you can what a video review mashup looks like. This is my husband. He threw away all of his old tees as soon as he got these, and he keeps buying more. Did it live up? Yes. Husband said that the only things he needed to pack were core shorts, plastic tees, and a raincoat. But what'd you forget? What'd you forget to bring? Both my girls in the carrier, and one of the things I hate the most is when the sleeves roll up. As you can see, just sitting nice. Someone is wearing a new black shirt. You look cute. So classic simple ad था, and if you noticed, they tried to being native to the platform. They were running it perhaps in the Instagram account. They were perhaps running this ad in the Instagram, and maybe they were not targeting they were not targeting men, but men के जो wives को हैं, they were targeting them, और उन्हीं के according ये review बनाया गया है. In the Indian e-commerce, if you want to see a video mashup review, then you can check out Rage Coffee. They use a lot of video review mashup, so you can take inspiration from there. Another जो ad है unboxing and lifestyle application मैंने बताया था, so let us see one example of that. यहाँ पे they have tried to give a pre-purchase experience, value props and objection handling. Let us look at I it. found on the internet that I can no longer live without. I saw a bunch of people using these portable blenders for smoothies, protein shakes, and other recipes, and I just had to try it out for myself. Picking a color was actually so hard because there were so many good ones to choose from, but ultimately I went with this lavender color and I got the black one for my husband. I made my favorite frozen coffee in it and I cannot believe how well it worked. It blended the ice like my big industrial blender in 30 seconds. You can take it on the go with you to work, make protein shakes at the gym, or even cocktails at the pool. The best part is that it's entirely self-cleaning. Just add a little soap and water, blend it up, rinse it out, and you're done. No more hassles with big, messy blenders. So the scripting for this kind of ad is very crucial. आप स्क्रिप्ट में क्या बोल रहे हो, what visuals you are showing, you need to plan this properly. And native है, people love this kind of interactive unboxing videos. Now that were the some ad examples that I had collected. I think ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, so I don't मतलब adding more examples was not relevant. You can अपने साथ जाके ad library में अपने competitions and see what other types of ad people are using, big brands are using. So वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, so adding any more ad examples was not relevant, so I had to cut it short. You can go मतलब अपने साथ Facebook ad library में जाओ, big brands का library खोलो, ad library, and see what kind of ads they are using and try to figure out the template that they are using. Now to give you closing thoughts में मैं आपको कुछ technical aspects बताना चाहूँगा. तो मैंने कहा ना 15 सेकंड वीडियो ही बनाओ, उससे बड़ा लंबा वीडियो ना बनाओ. आई एम सेइंग 15 सेकंड बिकॉज ऑफ द टू रीज़न. एक तो अटेंशन स्पैन कम है हमारे ऑडियंसेस का जो भी सोशल मीडिया में इंटरेक्ट कर रहे हैं. दूसरा है क्या ना, इफ़ यू यूज़ 15 सेकंड ऐड, यू कैन यूज़ द ऐड इन दी स्टोरीज एज वेल एज रील्स में आप वो ऐड को यूज़ कर सकते हो. दूसरा है यूज़ सबटाइटल्स. अगर आप ह्यूमन फेसेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबटाइटल यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज पीपल
फेसबुक जब स्क्रॉल करते हैं ना, मे बी दे आर ट्रैवलिंग इन बसेस और दे आर इन द ऑफिस, सो मे बी द ऑडियो इज टर्न्ड ऑफ एंड जनरली पीपल वॉच द एड्स इन म्यूट. तो जो भी आप डिलीवर कर रहे हो स्पीच फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर दैट यू आर यूजिंग, तो यूज सबटाइटल्स. वॉइस ओवर आप दे सकते हो, तो वॉइस ओवर के लिए यू कैन गो टू फाइवर. मैंने जो भी एड्स बनाए थे आई यूज्ड फाइवर फॉर द वॉइस ओवर. अगर आपको इंडियन एक्सेंट में चाहिए तो आई ड्रॉप अ लिंक टू अ फीमेल फाइवर सेलर जिन्होंने मेरे लिए वॉइस ओवर किया था. आई ड्रॉप अ लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन. एंड वीडियो एडिटिंग के लिए आप कैपविंग यूज़ कर सकते हो, capwing.com. ये फ्री प्लेटफॉर्म है और काफ़ी अच्छा, मतलब वीडियो ऐड इस पर आप एडिट कर सकते हो, कैप्शन दे सकते हो, सबटाइटल भी इसमें बना सकते हो. काफ़ी इजी टू यूज़ है. अगर मोबाइल में आप कर रहे हो तो इन शॉट, आई थिंक मैंने यूज़ नहीं किया मोबाइल में, बट आई हैव हर्ड कि इन शॉट इज़ अ गुड वीडियो ऐड इन द वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. एंड देन जैसे आई टॉक्ड अबाउट कीपिंग द नेटिव टू द प्लेटफॉर्म. तो अपने मोबाइल पे अगर ज़्यादा जितना रियल स्टेट है ऐड दिखाने के लिए, तो फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फीड आप जो ऐड बनाओगे, कीप इट इन दी एस्पेक्ट रेशियो 4:5. 4:5 क्या है ना, लाइक अगर आपका विड्थ 800 है तो हाइट आपका 1000 होना चाहिए. तो यू नीड टू कीप दैट aspect ratio of the video or the images as 4:5, because that is the maximum space you can acquire in a जब फीड में मोबाइल में जब स्क्रॉल होता है, दैट इज़ द मैक्सिमम स्पेस. एंड अगर आप स्टोरीज के लिए, रील्स के लिए यूज़ कर रहे हो, तो देन मेक श्योर कि सेम ऐड आपका कन्वर्ट होकर 9:16 बन जाए. सेम 9:16 इस एस्पेक्ट रेशियो में. सो यू नीड टू क्रिएट वेरिएशंस ऑफ योर ऐड. अगर आप इंस्टाग्राम में फीड में चला रहे हो, सो यू नीड 4:5. and if you are using the same ad creatives for stories, make sure you convert it into 9:16. and थोड़ा सा cropping या फिर कुछ elements you have to bring up and down to adjust that thing. and obviously use background music. I thought जब मैं ये ad बना रहा था अपने background इसमें sort of फेसबुक में ऐड बना रहा था, तो आई थॉट मे बी देयर विल बी सम कॉपीराइट क्लेम, बिकॉज जो म्यूज़िक यूज़ कर रहा था मैं, दैट वाज स्ट्रेट फ्रॉम द एल्बम एंड ऑल. तो आई एम लकी, आई एम नॉट श्योर, बट इट वर्कड. कोई कंप्लेन नहीं आया एंड पीपल रिस्पॉन्डिंग. फेसबुक डिड नॉट स्टॉप दैट ऐड. सो आई थिंक यू शुड बी यूजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक. और अभी रील्स काफ़ी चल रहा है, रील्स टाइप के ऐड छाए हुए हैं. सो यू कैन यूज़ रील्स काइंड ऑफ म्यूजिक एंड सी हाउ दैट वर्क्स फॉर यू. एंड देन आखिरी जो है, आप वैल्यू प्रोपोर्शन दिखाने के लिए यूज़ में टॉप एंड बॉटम बार में कैप्शंस यूज़ करो. लेट मी शो व्हाट आई मीन बाय यूजिंग. I found on the internet that I can no longer. This is my husband. This ad में if you can see, girls have push-up bras, guys have this tees. So this is the caption I'm talking about. Top में आप इस तरह का caption use कर सकते हो. At the same time, use a subtitle. And Can you see this right here? I just received my Rakhi bracelet. so this type of a caption bar I'm talking about, top में and bottom में, you can use them to display your value props. Can you see This I found on the Okay, so now how do you decide कि आपका जो ads है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So the major metric is the click through rate, CTR we call that. तो अगर आपका click through rate is below 1%, so it is poor. I mean आपको ad creative में वर्क करना है, because it is not doing its sole purpose of, so it is not performing well. जो ad का main purpose है to get the click. If it is below 1%, it is poor. अगर आपका 1 से 2% के बीच में है, then it is good. and अगर आप 2% से ऊपर जाते हो, तो then it is excellent. and make note कि ये जो click through rate है, I'm talking about conversion campaigns. Facebook में बहुत सारे campaigns है, traffic campaigns है, awareness engagement campaign है. तो जो metrics में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, these are all for conversion campaign. and ये जो figure में arrive किया हूँ, ये कह लीजिए मेरा personal experience है कि फेसबुक में आपका एड रेलेवेंसी भी आता है. सो इफ योर क्लिक थ्रू रेट इज बिलो 1%, दी आपका जो एड रेलेवेंस स्कोर आएगा, दैट विल बी समवेयर अराउंड बिलो एवरेज, पुअर क्वालिटी, समथिंग लाइक दैट. तो ट्राई टू हिट दिस नंबर्स. एंड इफ यू सी यू आर हिटिंग दिस नंबर्स, उसके बाद भी आपका सेल्स नहीं आ रहा है, देन इशू मे बी आपके वेबसाइट में हो या फिर आपके ऑफर में हो, बिकॉज एड का पर्पस है सिर्फ आपके वेबसाइट में क्लिक को लेके जाना. So if these are the metrics and if you are doing very well in these, अगर आपका
ये मेट्रिक हिट होता है अपने एड्स में एंड स्टिल यू आर नॉट मेकिंग अ सेल, दैट मीन्स कि आपका वेबसाइट में या फिर आपके ऑफर्स में कुछ प्रॉब्लम है, यू नीड टू फिक्स दैट. सो आई थिंक सो दैट्स इट. मैंने काफ़ी मेहनत किया है ये प्रेजेंटेशन बनाने में एंड आई बिलीव कि यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो देयर वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड काफ़ी वैल्यू ऐड हुआ होगा आपके नॉलेज में एंड होपफुली you'll be able to use this knowledge into your ads and get a positive result. I would like to share ना, Facebook ad is not that difficult. कैंपेन शुरू होने से पहले I wanted to outsource it to some agency और सॉट मैंने एक फेसबुक ग्रुप चलता है शॉपिफाई सेलर्स का, सो आई पोस्टेड अ रिक्वायरमेंट देयर कि आई एम लुकिंग फॉर अ फेसबुक एड एक्सपर्ट. और वहाँ पे आई वाज बॉम्बार्डेड विद स्पैम मैसेजेस. एवरी सेकंड बंदा अपने आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट बताता है. आई डिड टॉक टू सम ऑफ दोस हु क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, बट जब मैंने बात किया तो उन्होंने सिर्फ हमारा एड अकाउंट चाहिए था एंड दे वर जो कोटेशन दिया था इट वाज लाइक 15,000 20,000 रुपीज अप फ्रंट एंड देन 10% ऑफ योर एड बजट. जब उनसे मैंने पूछा व्हाट इज योर एड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, तो दे वर लाइक आप जो दोगे मैं वो चलाएंगे, आप जो क्रिएटिव्स प्रोवाइड करोगे आई विल डू दैट. तो अगर क्रिएटिव्स मैं खुद बनाऊँ, सब खुद डिज़ाइन करूँ, तो वाई वुड आई पे देम टू रन दी एड्स. तो फेसबुक ऐड अगर आपको सीखना है इट्स वेरी सिंपल. आपको सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, टू अंडरस्टैंड द इंटरफेस. एक बार इंटरफेस समझ जाओ, ऐड चलाना बहुत ही आसान है. देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज दैट आई फॉलो फ्रॉम स्किल शेयर. सिर्फ फेसबुक एड्स का नहीं, और भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, ब्रांडिंग एंड देन ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं skillshare.com में. आई हैव सब्सक्रिप्शन ओवर देयर, तो आप भी जाके skillshare.com में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. It costs somewhere around on a monthly basis 500 rupees per month, which is I think a very genuine and very nominal fee. और अगर आप annual जाते हो तो it's like 200 rupees per month. And there are a lot of very good courses out there. तो आप skillshare.com से बहुत कुछ सीख सकते हो. So go ahead and check those out. अगर possible होगा तो I'll drop a link in the description of the courses that I would recommend to go through that. So you can go ahead and check courses on skillshare.com. On the other front, अगर आपने यहाँ तक आया है, आई नीड सम काइंड ऑफ एनकरेजमेंट. आप इस वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर इट विथ योर एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड दोज आर इनटू ई कॉमर्स. एंड इफ यू वांट कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, गिविंग सम इनसाइट्स, सो लेट मी नो. मे बी आई ट्राई टू डू वन वीडियो एवरी मंथ और मे बी fortnightly, and let us see. I'm here to help you out. If you want any personal consultation or if you have any doubts, you can reach out to me in my WhatsApp number. जो भी LBP community में है, they already have my number there, so you can always feel free to reach out and share any concerns that you may have. Thank you for staying this long. Thank you.